Welcome again. I got some message in the comment box through YouTube. The question number 2 of 8.3 as well as the question number 6 of 8.3. Here the question number 1 of 2, and this is the LHS of the question, and that is tan 45 into tan 23 into tan 42 into tan 67, and the RHS is 1. Okay, so let the process begin. Here कल मैंने आपको एक चीज बोला था, एक बात बोली थी मैंने आपको कि आपको पेयर में काम करना है. ओके, आपको पेयर में काम करना है. और पेयर कैसे आप क्रिएट करेंगे? पेयर क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप देखें कि किन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंक्लूडिंग एंगल का सम 90 डिग्री है. आपको यही देखना है ना. तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 48 प्लस 42 इज इक्वल टू 90. तो यहां पे tan 48 इंटू tan 42 23 प्लस 67. ओके, 23 प्लस 67 23 plus 67 is equal to 90. So tan 23 into tan 67. Here the pairs tan 48 into tan 42, tan 23 into tan 67. Now convert one of the angle just in between 42, 48 and 42. 48 और 42 में से किसी एक को बदलेंगे और 23 और 67 में से किसी एक को बदलेंगे. तो tan 48 can be written as 90 minus 42 into tan 42. Tan 23 90 minus 67 into tan 67. Now tan 90 minus theta, tan 90 minus theta, that's equal to cot theta into tan 42. Again tan 90 minus theta, that's equal to cot theta into tan 67. आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि since tan 90 degree minus theta is equal to cot theta. Okay, now we have an extra formula, as since we know that tan theta into cot theta is equal to 1. tan theta और cot theta का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 की इक्वल होता है. tan theta into cot theta is equal to 1. Here cot 42 into tan 42, cot theta into tan theta, that's equal to 1, as cot 67 into tan 67, that's also equal to 1. आप फिर से यहाँ पे एक और रीजन लिख सकते हैं कि since tan theta into cot theta is equal to 1, 1 into 1 1, and that's your RHS. Okay, here the solution of 2 ka 1. Okay, and I hope by doing the same process you can also obtain question number 2 का 2. आप 2 का 2 भी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप 2 के 2 को बना सकते हैं. अगर नहीं बनेगा then again comment in comment box. Okay, I again with you. Okay. Question. Okay. Now the question number 6 of 8.3. If ABC are the interior angle of triangle ABC, then we have to show that sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2. Here the solution. ABC are the interior angles of triangle ABC. So in class 9th we have already studied that angle sum property of a triangle, and that is the sum of all angles in a triangle is 180 by Coulomb 6.7 in class 9th. So here angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. We have to write the logic, and the logic is
angle sum property of the triangle. That angle A plus B plus C is equal to 1. Now, transpose A to the RHS. Okay, transpose A to the RHS. So, we have next term like B plus C is equal to 180 minus A. Now, divide by 2 to both sides. Okay, here the logic. Divide by 2 to both sides. Okay, दोनों साइड में हमने 2 से डिवाइड कर दिया. दैट इज B plus C by 2 is equal to, now 2 is distributed to 180 as well as A. 2 को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 180 पे भी और A पे भी. तो 2 को अगर 180 पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 90 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा A by 2. ओके, नाउ टेक बोथ sin टू द बोथ साइड्स. अब आप एक काम करें, यहां पे मैंने LHS और RHS दोनों में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले लिया. sin, याद रखिए अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर LHS और RHS से अगर एलिमिनेट कर सकते हैं तो उन दोनों को ले भी सकते हैं, है ना. तो यहां पे लॉजिक देंगे, कि टेक sin टू बोथ साइड्स. ओके, टेक sin टू बोथ साइड्स. हेंस sin B plus C by 2 is equal to sin 90 minus theta, that's equal to cos theta. Okay, this is the proof of question number 6. यही प्रूफ करना था हमको. यहाँ पे sin 90 minus A by 2 तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में फॉर्मूला है ना, कि sin 90 minus theta is equal to क्या होता है, cos theta. that's why sin 90 minus A by 2 is equal to cos A by 2. आप लॉजिक यहाँ दे सकते हैं, यहाँ पे लॉजिक दे सकते हैं कि since sin 90 minus theta is equal to cos theta. ये लॉजिक हुआ, है ना. और इसी लॉजिक के थ्रू sin 90 minus A by 2 की जगह पे मैंने लिखा cos A by 2. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. Now I am going to teach you the next exercise. Okay, and the next exercise is the exercise of trigonometric identities. Okay, trigonometric identities. आपने 9th क्लास में पॉलिनोमियल में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था, जैसे कि a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, तो वो क्या था कि अगर आप a और b के किसी भी वैल्यू को अगर आप वहां पुट करते, किसी भी वैल्यू को, है ना, एनी ऑफ द वैल्यू इफ यू पुट इन दैट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो वो सेटिस्फाई होता था. मतलब LHS और RHS का वैल्यू दोनों इक्वल होता था. यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें टी रेशियोज इन्वॉल्व हो, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें टी रेशियो का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एज लाइक sin cos tan sec cosec एंड cot. तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हो, है ना, तो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहेंगे अगर वो इक्वेशन दिए जाए एंगल के किसी भी वैल्यू को के लिए ट्रू हो जाए, सही हो जाए, उसको सेटिस्फाई करे. ओके, मतलब अगर कोई इक्वेशन, बहुत सिंपली बता रहे हैं कि अगर कोई इक्वेशन है और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे तो जाहिर सी बात है उनके इंक्लूडिंग एंगल्स भी होंगे. ओके, तो अगर आप उनके इंक्लूडिंग एंगल की जगह आप कोई भी एंगल डालो, है ना, आप कोई भी एंगल डालो. वैसे आपको 5 एंगल पढ़ना है ना, 0, 30, 45, 60 और 90, लेकिन आप कोई भी एंगल डालो और जब आप उसका वैल्यू निकालोगे तो LHS और RHS का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. मतलब दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द एंगल्स इन्वॉल्व. उसमें जो एंगल इन्वॉल्व है उसके किसी भी वैल्यू के लिए वो इक्वेशन जो है वो ट्रू हो जाएगा. सच दैट आई एम गोइंग टू राइट
trigonometric ratio identity like sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ओके, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब आप कहेंगे कि सर बताओ ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे हैं? तो आपको एक काम करना चाहिए. आपको ये जो थीटा है, अच्छा थीटा क्या है? ये एंगल का नोटेशन है ना. जैसे कि आपका नाम है, मेरा नाम है, तो वो नोटेशन, उसी तरह थीटा भी नोटेशन है एंगल का. आप इस थीटा की जगह पे कोई वैल्यू डालो, आप 0 डालो, आप 30 डालो. मैं इन 5 एंगल पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इन 5 एंगल के वैल्यू आपको मालूम है. अगर आप कह दोगे कि सर 40 डिग्री डाल दीजिए, या आप कहोगे कि सर 67 डिग्री डाल दीजिए, तो उसके लिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को पढ़ना आना चाहिए, है ना. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के पढ़े बिना हम उन वैल्यूज को नहीं निकाल पाएंगे, है ना. दैट इज द सिंगल मेथड. तो यहाँ पे हम बस 5 वैल्यू ही रख के देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आइडेंटिटी सिर्फ 5 वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई करेगा. ये किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, लेकिन चूंकि हम लोग के पास यही 5 पर्टिकुलर एंगल्स हैं जिनके वैल्यूज हम जानते हैं, इसलिए हम यही 5 एंगल डालेंगे. तो जैसे कि सपोज अगर आप थीटा इज इक्वल टू 0 डालो, ओके, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर 0. ओके, sin 0 0 0 का स्क्वायर, cos 0 1 1 का स्क्वायर, 0 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 1. आप देखिए कि जब थीटा का वैल्यू मैंने 0 डाला तो sin स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर 0 का वैल्यू कितना आया? 1. और यही इस इक्वेशन का RHS है, यानी कि 0 के लिए ट्रू हो गया, 0 के लिए इसने सेटिस्फाई कर दिया. चलिए कोई और वैल्यू डाल के देख लेते हैं. सपोज कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना. रैंडम वैल्यू मैं डाल रहा हूँ, 0 डाला, फिर 60 डाल के देख रहा हूँ. sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60. The value of sin 60 is root 3 by 2. Okay, तो root 3 by 2 का होल स्क्वायर, cos 60 1 by 2, तो 1 by 2 का होल स्क्वायर. तो रूट 3 by 2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, रूट 3 by 2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा आपको 3 by 4. और अगर आप 1 by 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 1 by 4. अगर आप 4 LCM लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 plus 1 दैट्स इक्वल टू 4 by 4 एंड दैट्स इक्वल टू 1. ओके, फिर आप देखो यहाँ पे जब आपने थीटा का वैल्यू 60 डाला, है ना, जब आपने थीटा का वैल्यू 60 डाला तो फिर जो फाइनल वैल्यू आया वो दिए गए इक्वेशन के RHS के क्या है? इक्वल है. फाइनली हम कह सकते हैं कि यस, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा must be a trigonometric identity. ये डेफिनेटली एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. अच्छा, सपोज कोई बच्चा पूछता है कि सर सपोज कि हम थीटा की जगह पे हमने 10 डिफरेंट एंगल को डाला, 9 एंगल के लिए इक्वेशन ट्रू हो गया, लेकिन एक एंगल के लिए इक्वेशन ट्रू नहीं हुआ, वो फॉल्स हो गया. क्या वो आइडेंटिटी होगा? डेफिनेटली नॉट. वो इक्वेशन कभी भी आइडेंटिटी नहीं होगा. इस बात को आप ख्याल रखेंगे. उसको किसी भी वैल्यू के लिए, थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए उसको ट्रू होना पड़ेगा, थीटा के किसी वैल्यू के लिए इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. मतलब LHS और RHS का वैल्यू वहां क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी होगा, नहीं तो आइडेंटिटी नहीं होगा. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द फॉर्मूला which will be used in the exercise like 8.4. Okay, I'm going to discuss some formula. The first is, these all are identities, definitely these all are identities. The first is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Now you can obtain two of the formula from the single identity like sin square theta is equal to 1 minus cos square theta and cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Okay, the two of the formula from the single formula is obtained here. One is the value of sin square theta and one is the value of cos square theta. Now the second one, sec square theta minus tan square theta is equal to 1. So the value of sec square theta is equal to 1 plus tan square theta and the value of
tan square theta is equal to sec square theta minus 1. This is the second formula. Now the third, cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. So cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta, and cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. So these are three formula, these are three identities, and these are the main identity. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. These are three main identities. Okay. Now some more formula. One more thing which I want to tell you. These all three identities are valid only for the power 2. ये तीनों identities सिर्फ power 2 के लिए, exponent 2 के लिए valid है. इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है. लॉजिक ये है कि ये तीनों का जो फॉर्म होता है वो पाइथागोरस के रूल पे डिपेंड करता है ना. एंड द रूल ऑफ पाइथागोरस इज द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. और चूंकि ये तीनों डिपेंड करते हैं ऑन द रूल ऑफ पाइथागोरस, दैट्स व्हाई मैंने कहा कि ये तीनों फॉर्मूला जो है, ये तीनों आइडेंटिटीज सिर्फ और सिर्फ पावर 2 के लिए ही वैलिड होगा, दूसरे पावर के लिए वैलिड नहीं होगा. नाउ फॉर्मूला नंबर 4, एज sin theta into cosec theta is equal to 1, because sin and cosec are reciprocal to each other. That's why we can say that sin theta is equal to 1 by cosec theta, and cosec theta is equal to 1 by sin theta. 5, cos theta into sec theta is equal to 1. Then cos theta is equal to 1 by sec theta, and sec theta is equal to 1 by cos theta. Formula number 6, tan theta into cot theta is equal to 1, because tan and cot are reciprocal to each other. So tan theta is equal to 1 by cot theta, and cot theta is equal to 1 by tan theta. Again 7, tan theta is equal to sin theta by cos theta, or sec theta by cosec theta. 8, cot theta is equal to cos theta by sin theta is equal to cosec theta by sec theta. Okay, so these are 8 formulas, these are 8 identity, and these all 8 statement. This is the main statement, this is the main statement, this is the main statement, and followed up. These all 8 formula, these all identities are very helpful for making the exercise like 8.4. तो आज यहीं तक अभी रखते हैं, है ना. आज का जो क्लास है वो खत्म करते हैं. कल फिर हम लोग एंट्री करेंगे 8.4 में. तब तक मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कि प्लीज स्टडी द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आप उसको पढ़ें, इन फॉर्मूला को देखें, बिकॉज यही वो 8 फॉर्मूला है जिनसे आपका पूरा एक्सरसाइज 8.4 बनेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो देन अभी के लिए बस इतना ही. कल फिर जो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे उसमें 8.4 में हम एंट्री लेंगे. थैंक यू वेरी मच.